the greatest name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I warmly welcome all our today's participants in our session organized by Sahiba Writing Squad. Today's session is very special because we are having an amazing personality, Mr. Danial Khan, among us. We are truly honored to have Mr. Danial Khan here with us. On behalf of Sahiba Writing Squad, I would like to extend a very warm welcome to our guest speaker. Before we begin, I request everyone to stay attentive during this session. So, we are going to start our session officially. First, I will deliver the introduction of Sahiba Writing Squads and its initiatives. And then inshallah we will move forward the introduction of our today's guest speaker, Mr. Danial Khan. When we talk about Sahiba Writing Squad, we say that the vision behind Sahiba Writing Squad is Ms. Sahibzadi Khan, the CEO of Sahiba Writing Squad. We say that it is a registered platform under FPR to leading, working and empower especially youth and the women of rural areas from 2021. From this perspective, this agency analyzes the problems and creates association for all of us. So, from this perspective, this agency has 4 initiatives. The first avenue is the digital literacy program, offering the most demanding digital skills feed courses like English speaking, content writing, graphic designing, and in past, this agency done favor and upper cases too. So, with the passage of time, this agency expanded to include new and amazing courses for our youth related to AI, ChatGPT, and other emerging technologies. The second venue of Sahiba Writing Squad is based on virtual session, as it had done 100 plus virtual sessions. As you all know that we all are the part of prestigious virtual session. And the third venue is based on women empowerment. This is very special venue of Sahiba Writing Squad. This agency creates the community of women's entrepreneurs, and here this agency provides them initial training regarding SOPs. And this agency also promotes print and articles free of cost. And moreover, here this agency collaborates with Circle Women, Here International and Khadija program to provide professional development opportunities. So when we talk about the fourth avenue, that is about contest and competition, to show the talent in front of the world and global recognition, identification about talent and qualities, and how they can enhance and polish their talent in front of the world. From this point of view, this agency offering cash prizes and shield awards to the winners. So this is the complete introduction of Sahiba Writing Squad. Now let's move forward the introduction of our today's prestigious guest speaker, Mr. Danial Khan. Mr. Danial Khan, who writes under the pen name Sage, is a Maris Sklodowska Curie PhD scholar at the University of Granada, Spain, researching secure and trustworthy AI for critical infrastructure, including autonomous wind farms. His work focuses on reliable, explainable, and human-aligned AI systems. A former lieutenant commander in the Pakistan Navy, he has expertise in cyber operations and strategic systems, and has delivered AI solutions internationally. He is the founder of Veritas, an open source enterprise database platform, and a published author with Taylor and Francis. An educator and speaker, his work bridges AI ethics, leadership, and innovation. At this moment, I would kindly request our respected guest speaker to please come forward and begin the amazing session. Assalamu alaikum everyone, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, so let's get started. So today we're going to talk about like use of AI and how not to outsource your brain. And
Thank you for a wonderful introduction, Farah, and really honored to talk to you guys. So I see there are a lot of people here. So if you guys can write on the chat on your background, so I can kind of tailor the content as per your particular scenario rather than making it generic. So please, on the chat, I would like if you guys can write a bit about your background. So I'm not really sure how technical I should go about it. So I'll start generic and then let's see how technical I can go about it. So, okay, biotechnology. How many of you guys are into programming and stuff? Like, if I do tend to go technical, I need to know if any programmer, how many are at least capable to do programming stuff. I just see one hand. Okay, psychology, anthropology. Okay, I need to keep it that way. Fine. Okay, so there's a lot of hype and noise around AI that's going on, and everybody is now suddenly an AI expert. Most of those guys you'll find are from marketing, and they would be framing themselves as AI expert. A lot of guys who used to be software engineers are now AI engineers, whereas most of them are just working with AI companies' APIs. So they're just using ChatGPT APIs and using the whole software engineering methodology, and then they're calling themselves as AI engineers. I happen to be one of the few people who were following AI much before ChatGPT and all of this came because, again, I was doing my. So nowadays we talk about, like we used to say AD and BC, like before Christ and after Christ and all that. And now it is before ChatGPT and AC is after ChatGPT. So my degree is BC, before ChatGPT. So at that time, there was a 2017 paper called Attention is All You Need. That was a paper that got me thinking into transformers and all of that stuff. And that is how I first got into the idea that, okay, this is going to be the next big thing. And when ChatGPT was launched, I was kind of amongst those people who were like already kind of well versed with it. If you see any job post who says 10 years of AI experience and all of that, or with LLMs, and then obviously if the HRs posts such nonsense, you're going to get nonsense response that I have 10 years of AI experience, whereas the phenomena is like it hardly dates back to 2022 at best. And no one is 10 years of experience in Pakistan because no one I know was involved in development of OpenAI or Gemini or any of that stuff. We all know that. So it's about time that we need to know what is real and what's not real. So there is no such thing that this phenomena is fairly recent and we need to know that. Now, because of that, we have so many things like you know advancing so quickly. So what used to take me like a day or two to debug is now a matter of few minutes at times. So my first book was about open source technology. So it's called Open for Business, and we talked about how we can use open source technology. I'll come to it a bit to build a complete corporate IT infrastructure. Much of the code out there is open source. Companies like Google and Meta, they're making their models, they're making their code open source. I would say that in this day and age, not knowing how to code Python is a serious disadvantage. No matter what field you're from, at least what you should be able to do is work around a basic Jupyter notebook and learn to search result. Nobody goes to the second page or third page. That was the depth of our understanding. That was the depth at which we would bother to research anything. Now with media and AI, there is another boom towards an information warfare. Previously, what was information warfare? It was just, you know, you're, there are two armies fighting, and somebody just uh, stops and says, "Hey, the leader of the other side is dead."
and suddenly even the leader himself is like, "What? Hey, I'm here," and suddenly there's a frenzy, and the whole army leaves the battlefield. That's the simplest form we had of this thing, but now it has kind of evolved. I can tell you examples where just through a Facebook group, some guys in Russia, they were able to conduct a whole anti-vaccination campaign and even got the people in United States out in the streets, only for them to realize that all of this was fake. A lot of election results have been swayed just by the power of information, misinformation and disinformation warfare. A lot of what you see on Ukraine and Russia front, uh, obviously there is some field action going on as well, but much of it is in the information domain. Even if you remember the recent Pakistan-India standoff, I think the actual missiles fired and the number of posts that were fired is a lot different. I'm sure you agree with that. Like that, that's like I think much of the war was fought on social media, then on actual missiles and all that. And by the way, I was serving in the Navy at that time, so I have a very good amount of idea of what was going on at that time. So you can see how the whole dimension is changing. Now, what does that mean for us as individuals? That if we don't adapt to it, if we don't learn and update ourselves, uh, obviously there's no future. So I'm not saying that AI is going to replace us all. It hasn't. It's not going to do that very soon. I'm still employed. I still get good money, so I'm fine. Most of you will be fine. But the ones who do use AI will be the ones who will be taking over. So I'm going to show you my screen right now. Okay. So now take a look at this. Now I'm using a Linux system, by the way. The first thing I recommend everyone to do is to stop using Windows and start using Linux. Linux is open source. It's kind of difficult to learn in the start, but it gives you real freedom. Okay. The second thing is that you need to learn Python. Okay. That doesn't mean that you have to follow some 6 months course and all that. 2 weeks of good YouTube lessons can do that. I can give you recommendations in the end as well. Now I'll give you an example on how I am researching these days. So in front of you is something we call an IDE. So the guys from software engineering, they know it already. Okay. I have a chat interface here, this end. Okay. This is originally a coding tool, but how I'm using it is for my literature review. What I can show you right now is, take a look at this. I have reviewed 1,310 research papers. So what I did was that I taught it how to do literature review on how I would do it. So I gave it a sample of like 10 to 20 papers, and then the rest I asked it to do it, and now it is following how I do it. This is what I'm not really dependent on it, but AI is definitely assisting me to review the literature. What does that review? The source, the title, publisher, content summary, methodology, findings, and relevance to my code base. This tool actually has awareness of all the files that are in here, so that it knows what I'm talking about based on what information is there already. So one of the best things you can do with this is if you want to write a book, for example. So I'm going to run you through this, okay? It's going to cost me some, but okay. Let's do one thing. I'm going to open a new workspace, okay? I'll open a new window, okay? So I'm going to generate a new, let's make a new project, for example. Okay, my book. So I'm opening my book. So I have, what this shows is that this is a folder I've made called my book. Let's say I want to write
First I want to make an outline. Okay. So previously I would like write down everything myself and all of that. But let's say I have a book idea. Okay. So let's say um, make it a concept, for example. Let's make it a concept. This will be better. Concept.md. Okay. So I'm gonna write. Can anyone in the chat write a concept that they want? Let's collaboratively do it and write a book. Which Linux is this? This is Ubuntu right now, but use Fedora. I'm gonna leave Ubuntu very soon. I like Fedora. Okay, so let's do it without outsourcing our thinking. So I'm gonna walk you through the exercise, and that way you're gonna understand better. So can you please, by the way, Zira Khan has a funny DP. Okay, so can you please give me anyone give me an idea on what book you want to write, a story book and anything. Feminist? Is that a book idea or is that some kind of comment? I don't get it. तुम दानियाल आप उर्दू यूज कर लें ताकि ये आपके साथ ज्यादा बेटर इंटरेक्शन कर सकें। चलो ठीक है, ओके चलो उर्दू में स्विच कर लेते हैं। सब स्टार्ट इंग्लिश में हुआ तो मैंने भी उस पर वो कर दिया। चलो कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई मुझे ये बताओ कि आप लोग बुक का आइडिया क्या वो यूज करना चाह रहे हो? कोई एक अच्छा साहिबा आप ही बता दो कोई बुक का मुझे कोई आइडिया, तो अभी अभी बैठ के हम जल्दी जल्दी बुक लिखेंगे इसी सेशन में। कोई एक मुझे बुक का आइडिया दो। मैं डेफिनेटली मोटिवेशनल ही लिखूंगी। पहले भी मैंने 2 बुक्स लिखी हैं तो वो मोटिवेशनल हैं। कोई एक टॉपिक उसमें वो कर ले। ओके हाउ टू ओके मैं चलो हाउ टू थिंक क्लियरली इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। वैसे इसको ऑलरेडी पता है मैं क्या बोलने लगूं, मैंने अपने को ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने उसको ये ऑलरेडी बता दिया, ठीक है कि भाई इसमें वो करना है। अब मैं एक अपना आइडिया उसको देता हूँ कि भाई इसमें किस तरह से करना है। ओके अगर मैं इस पे शुरू करूंगा, मेरा आइडिया क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे बात कर लेते हैं कि भाई आजकल किस तरह से चल रहा है, हाउ सोशल मीडिया इज चेंजिंग एवरीथिंग। हम लॉज ऑफ लॉजिक पे थोड़ा बात कर सकते हैं। ये भी मैं रैंडम अपने थॉट्स वो करता जा रहा हूँ क्या है। अगर someone else wants to add तो मैं साथ में देख लेता हूँ कि क्या कहते हैं effect on behaviors of humans age wise, कि बच्चों पे क्या इसका इफेक्ट है और क्या हो सकता है। इसमें हम बात कर सकते हैं, हम इसमें बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं effect on society behaviors as individuals, or guidance on how to overcome disinformation effects, learning effective रिसर्च। आपको ये देखो मैं अपने दिमाग से इतना लिखा जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं बगैर एआई के भी लिख सकता हूँ। तो पहली चीज आप लोगों को ना ये आना चाहिए कि आप लोग कोई भी अगर काम करो ना तो वो पहले अपने दिमाग को यूज करना सीखो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अगर आप अपना दिमाग यूज करके कुछ जनरेट कर सकते हो तो एआई आपको सिर्फ एम्पलीफाई कर सकता है। अगर आपको खुद कुछ नहीं आता ना तो फिर बातें ही करवाते रहो, ठीक है। तो अभी इधर तक तो ये मैंने आपको खड़े खड़े बुके जाना वो मोटे मोटे पॉइंट्स बता दिए। इफेक्टिव रिसर्च, लर्निंग हाउ टू रिव्यू, लर्निंग हाउ टू फीडबैक, क्रॉस रेफरेंस एंड ओके गुड बुक्स एंड एकेडमिक मटेरियल्स, ठीक है। मैं ये चीजें उसको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक दफा खुद ही कर चुका हूँ, ठीक है। बीसी बिफोर चैट जीपीटी एरा, ठीक है। बीसीई बिफोर चैट जीपीटी एरा ये मैं कर चुका हूँ। इसलिए जब कोई भी चीज सीखो तो आप कोशिश करो कि पहले वो चीज खुद करना सीखो। अगर ऐसे लिखना है तो पहले खुद लिखना सीखो, ठीक है। अच्छा स्क्रीन नहीं शो हो रहा, दोबारा इसको वो कर लेते हैं।
हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गई है। ये माई बुक वाले को शेयर कर देते हैं, ये लो, अब नहीं हटेगा। ओके, सो अब आप एक चीज उसमें देखो कि मैं उसको साथ साथ क्या कर रहा हूँ, मैं उसको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं एक 5 क्लास के बच्चे को मैं समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट उसको बताना है। अब जो आपका वर्क फ्लो होगा वो इसके अराउंड होगा कि आप एआई को कितने इफेक्टिवली आप चीजें बता सकते हो ताकि वो कर सके, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो आपको कहते हैं ना जी एआई ये कर लेगा वो कर लेगा, उनसे अगर बिठाऊं ना मैं उनको, मैं को कहूंगा भाई मुझे इफेक्टिवली काम करके दिखाओ, वो नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इवन पाकिस्तान के एआई स्फेयर में मुझे इतना गुस्सा आता है वो देख के कि सारे बातें करने वाले आगे हैं, एक्चुअल काम करने वाले उनसे पूछो ना यार कितने आपने प्रोडक्ट्स एंड टू एंड डेवलप किए, तो वो नहीं किए हुए। और यहाँ हम मार खाते हैं, हम पैसा डबल करने के चक्कर में हम मतलब वो कोई गंदा सा कोई एक वो बना के अच्छे यूआई के साथ और उसको बेचने के चक्कर में है, बट एक्चुअल वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे। क्यों? क्योंकि खुद कभी वो काम किया नहीं। तो वन ऑफ द टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि यार एआई जब अवेलेबल है एटलीस्ट अपने लिए रोड मैप ही बनवा लो कि यार मैं ये चीज सीखूं, पहले खुद कैसे सीखूं, जब खुद सीख लूं तो फिर नेक्स्ट आपने ये सीखना है कि भाई उसे करवाना कैसे। बुक राइटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि भाई पहले जैसे टूटी पजी उर्दू आती है वो या इंग्लिश आती है, उसमें खुद तो लिखना सीखो पहले। अगर खुद नहीं आता होगा तो अगले से ठीक कैसे करवाओगे। मैं जब नेवी में था तो हम लोगों को जहाज ना अलॉन्ग साइड लगाना होता है, तो उसमें जब हम रस्सियां वगैरह फेंकते हैं तो कुछ ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने बस देखा होता है और वो शुरू हो जाते हैं। जो हम लोग जिनसे सीखे थे उसने ना हमसे रस्सियां पहले खिंचवाई थी, क्योंकि जब आप वो साथ लगा रहे होते हो ना तो बड़ी टाइमिंग के साथ रस्सी खींचनी होती है, जोर लगाना होता है ये और वो, ताकि वो शिप एकदम अलग ना हो, क्योंकि पानी में स्टेबिलिटी तो नहीं होती। अब हम जब उस पे क्या नाम है अलॉन्ग साइड आते तो एक ऑफिसर उछल रहा था, चीख रहा था, दूसरा बड़ा काम था, तो मेरा सीनियर था। मैंने उससे जो ठंडा था उससे पूछा, मैंने कहा आप कैसे इस तरह से हो? उसने कहा यार देखो उस बंदे ने खुद कभी रस्सा खींचा नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कह रहा है अभी ऐसे करो, तो ये धागे थोड़ी खींच रहे हैं, इतने मोटे मोटे रस्से होते हैं वो खींच रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, डिले तो होता है। तो दैट इज द होल पॉइंट कि जिसने खुद किया होता है वो जब अगले से करवा भी रहा होता है वो बड़ा काम एंड क्वाइट तरीके से करवा रहा होता है। जिसने खुद नहीं किया होता और वो दूसरों के ऊपर चीख रहा होता है, तो आप कहते हैं इवन एआई में भी प्रॉम्प्टिंग में एक लेवल होता है जी, पहले करवा रहा था जी ये हो नहीं रहा, उसके बाद मैंने लोगों के ये भी प्रॉम्प्ट्स देखे हैं, प्लीज डू इट फॉर माय ग्रैंडमा, शी इज अबाउट टू डाई, प्लीज डू इट अदरवाइज आई विल डाई। मैंने ये वाले भी प्रॉम्प्ट्स देखे हैं। भाई जब तुम्हें अपना काम नहीं आता तो फिर एआई से यही वाली बातें तुम करवा सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि अब मैं उसे बुक लिखवा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मैं उसे क्या करवा रहा हूँ कि मैं उसको क्या कहते हैं, पहले उसको मैंने बोला कोई भी अगर मैं आपको देता हूँ, मुझे आप कहोगे कि यार मैं बुक लिख रहा हूँ मुझे बताओ ना, तो आपने मुझे ये आउटलाइन दी तो मैं सबसे पहले रिव्यू करूंगा ना पॉइंट्स, ठीक है। चलो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि क्रिटिकली रिव्यू, ठीक है। या मैं विंडसर्फ यूज कर रहा हूँ श्याम, आप कोई भी वो यूज कर लो, वीएस कोड के साथ कर लो। मैं टूल एग्नोस्टिक हूँ बाय द वे, मेरे पास विंडसर्फ भी है, मेरे पास एंटी ग्रेविटी भी है, मेरे पास कर्सर भी है, वीएस कोड तो बचपन से यूज कर रहे हैं, तो मतलब किसी पे भी आप वो प्ले कर सकते हो। मैं विंडसर्फ पे वो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आप लोगों को सिखाते सिखाते ना मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने बाय किए हुए क्रेडिट्स इसके 130 क्रेडिट्स, तो ये कुछ आप लोगों के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो खैर इतना महंगा नहीं है, आप $10 में आपको 500 क्रेडिट्स मिल जाता है, आपका बहुत काम आसान है। अच्छा, अब हम सबसे पहले रिव्यू कर रहे थे क्रिटिकली, ठीक है। फिर हम उसको कह रहे हैं कि तुम खुद से रिसर्च करो, इस आउटलाइन को इम्प्रूव करो। गुड के बजाय अगर हम इसको कहें कि इम्प्रूव्ड आउटलाइन, ताकि कोई बात में क्या कहते हैं कोई वो ना रहे, शक ना रहे उसको, ठीक। फिर इट शुड बी यूनिक एंड इंसाइटफुल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। Add references from good books and academic materials for me to review. ठीक है. Finalize a detailed outline with an engaging narrative. ये मैंने उसको बोला, ठीक है। मैं क्लॉड ओपस यूज कर रहा हूँ। अच्छा, मॉडल्स में चैट जीपीटी थोड़ा समराइजेशन और उसमें अच्छा है। कोडिंग और जो टेक्निकल किस्म के काम है उसमें ओपस और ये सोनेट वगैरह अच्छे हैं जो क्लॉड के हैं। जेमिनी लार्ज कॉन्टेक्स्ट वाले काम में करता है, अच्छा काम करता है वो। मेरे थोड़ा सा इंक्लिनेशन क्लॉड की तरफ है। ये आप लोगों ने खुद टेस्ट करना है और अपने हिसाब से करना है। मेरा एक दोस्त है, उसको क्या कहते हैं ट्रांसलेशंस वगैरह करनी होती थी, वो मुझे चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा वो करता था, ठीक है। और क्या कहते हैं वो चैट जीपीटी की तरफ ज़्यादा रिलाई करता था, ठीक है। मैं जिस तरह के काम कर रहा हूँ अभी साइंटिफिक, उसमें मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता है, क्या कहते हैं
क्या कहते हैं, मैं क्लॉड की तरफ ज़्यादा वो रहता हूँ, चैट जीपीटी से थोड़ा सा मैं नाराज़ हूँ, सही है। और क्या कहते हैं, जेमिनाई जो है अगर कोई बहुत लार्ज कॉन्टेक्स्ट और उसके लिए हो तो वो उसके लिए लार्ज कॉन्टेक्स्ट वर्क के लिए जो है वो जेमिनाई, दैट इज गुड, ठीक है। अब आप देखें कि ये एआई वाला भाई जो है मेरा विंडसर्फ जो है, ये सॉफ्टवेयर वालों को तो पता है क्या हो रहा है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। तो इसने क्या की है, अब एजेंटिक एआई की तरफ हम आ गए, ठीक है। सो एजेंटिक एआई में क्या होता है कि आपके यही मुख्तलिफ एजेंट्स वगैरह वो इस पे वो कर रहे होते हैं। सलमा, मैंने आपको दिखाया था कि रिसर्च में भी मैं इसी तरह इसको यूज कर रहा हूँ। सो देयर इज अ टूल कॉल्ड नोटबुक एलएम, ठीक है। मैं उसकी तरफ आता हूँ, ये मुझे बाद में याद कराना। मैं नोटबुक एलएम भी बहुत अच्छा टूल है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो अब आप क्या कर रहे हैं इसको, कि मैंने उसको एक को दे दिया। अच्छा, अगर इधर मेरे पास और बुक्स लेट से मौजूद हो, मेरे लेट से साहिबा ने 2-3 और बुक्स इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो उन 2 बुक्स को इधर कॉपी कर सकती हैं और उन बुक्स को भी इधर रेफर करवा सकती है चैट पे कि यार ये वाली पढ़ो, मैंने पहले कभी इस तरह से लिखा था, तो इस नरेशन में इसको लेके आओ, ये वो भी कर देगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज डन एज वेल, ओके। तो अब ये पता नहीं क्या इतनी डीप रिसर्च कर रहे हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही इसको बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा लेट्स गिव इट टाइम मीनवाइल उसमें वो। अच्छा, रिसर्च पे वो आ जाते हैं। जब तक ये हो रहा है तो मैं आपको नोटबुक एलएम की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। कैसे ये स्टॉप शेयरिंग, शेयर अगेन, इस शेयरिंग कार्ड्स में, ओके। अब हम जाते हैं नोटबुक एलएम की तरफ, ठीक है। यार ये बहुत अच्छा टूल है और मतलब हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। अब लेट्स से इसमें मैं एक नया नोटबुक बना देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसमें सोर्सेस खुद भी ढूंढ सकते हो, या आप अपने फाइल्स अपलोड कर सकते हो, या वेबसाइट्स के नाम डाल सकते हो, या कोई गूगल ड्राइव का लिंक है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो, बड़ा बेहतरीन टूल, ठीक है। लेट्स से मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, लेट्स से मेरे पास वेरिटस पे चलते हैं, ये मेरे पास कुछ वो है, ठीक है। ये अभी मैंने रिव्यू करने अपने, मैं उसने दूसरे एलएलएम से करा रहा हूँ, चलो इससे कर लेते हैं। अब आप ये देखो कि काम कितना आसान कर दिया भाई ने, ये क्या कहते हैं, मेटा वालों ने और इन भाइयों ने हमारे उसमें वो कर दिए कि अब वो ये इसको रिव्यू कर रहा है, ठीक है। ये इसने रिव्यू जैसे ही किया, मैं चाहूँ तो इसका एक पॉडकास्ट भी बनवा सकता हूँ, ये पूरा पॉडकास्ट बना लेगा। मैं चाहूँ तो एक स्पेशलाइज रिपोर्ट भी बना सकता हूँ, लेट्स से मुझे ब्लॉग पोस्ट बनाना है, स्टडी गाइड बनाना है, ब्रीफिंग बनानी है, लेकिन मैं इस पे नहीं रिकमेंड करता एकदम, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की चीजों में सबसे पहले जाके, वो ये ना, हम लोग वो जेनेरिक पाकिस्तानीज नहीं, हम लोग स्मार्ट वाले हैं। तो स्मार्ट वालों ने क्या करना है कि हम सबसे पहले से माइंड मैप बनवाएंगे और दूसरा डेटा टेबल बनवाएंगे। डेटा टेबल क्या है कि आप उससे टेबल बनवा सकते हैं कि लेट्स से मुझे बताओ हर टेबल का नाम, जैसे मैंने आप लोगों को अपना टेबल दिखाया था कि भाई उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, आउटकम्स क्या है, और वो मेरे प्रोजेक्ट से रेलेवेंट क्या है। ये 2 चीजें आप सबसे पहले करोगे। चलो अभी हम ये देखते हैं। अब मुझे ये समझ आ गई है कि भाई सॉरी, रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पे बात हो रही है इन पे, और ये 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या इसमें न्यूरल मशीन ट्रांसलेशंस में आरएनएन एनकोडर है और जॉइंट लर्निंग है, ठीक है। इसमें फिक्स्ड ये इस पे बात हो रही है। अब मुझे ओवरऑल समझ आ गया कि भाई क्या क्या हो रहा है। मैं एक एक करके इस सबको गो थ्रू करूंगा कि ये क्या क्या कर रहा है। अब लेट्स से मैंने इस पे बात करनी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये वाला पॉइंट मैंने ढूंढना था, मैंने इस पे बात करनी थी, तो मैं ये क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये उस मटेरियल में से एग्जैक्ट रेफरेंसेस के साथ मुझे बताएगा कि क्या कहते हैं, ये देखें, अब उसने मुझे बता दिया कि भाई इसमें क्या क्या है, और उसने बकायदा जगह बताई है कि ये कहां से कोट कर रहा है, ये वो भी बता रहा है आपको, ठीक है। आप मजीद इस पे फिर सवाल भी पूछ सकते हैं। लेट्स से आपको नॉन मोनोटोनिक अलाइनमेंट्स नहीं समझ आ रहा, उसको पूछ लो भाई इसमें नॉन मोनोटोनिक अलाइनमेंट का क्या मतलब है, ये आपको बता देगा। क्वेश्चन इज कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट, इसने अभी वो एक ये वर्ड लिखा था, मैंने इसको पॉइंट आउट किया, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो ये क्या भला है, बेसिकली डनिंग क्रूगर इफेक्ट ये होती है कि आप जब शुरू में कोई चीज पढ़ना शुरू करते हो, आपको लगता है आपको बहुत आता है, फिर जब आप और उसमें डीप घुसते हो, आप कहते हो यार मुझे कुछ भी नहीं आता,
फिर आप और उस पर डीप घुसते हो तो आप क्या नाम है, आप एक ऐसे स्टेट पे आ जाओ, स्टेबल स्टेट पे आ जाते हो कि आपको एक्चुअली क्लियर हो जाता है कि आपको क्या आता है और क्या आपने और सीखना है। और पीएचडी इज बेसिकली दिस, कि हम एक चीज में इतना घुस जाते हैं कि उसके बाद हमें एटलीस्ट ये समझ आ जाती है कि हमें क्या नहीं आता। ठीक है, ज्यादातर लोग पाकिस्तान में मैंने जितने देखे ना, वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट के शुरू वाले पार्ट में, तो उनको लगता है उनको बहुत आता है। ठीक है, कुछ ईगो फैक्टर है और कुछ वैसे भी है बीमारी इधर उसमें। बट आप लोगों से ये है कि भाई यू बीइंग बेटर पीपल, आप लोगों को इससे आगे निकलना होता है। तो जब भी कोई चीज सीखो तो उस पहले वाली फीलिंग से ना निकल जाया करो कि हाँ यार मुझे बड़ा पता है, आगे चलो। जब आप डेप्थ में आते हो और जब उस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो ना, तब आपको पता चलता है आपको क्या नहीं आता। दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब आपने ये रियलाइज किया कि भाई अपना माइंड यूज करते हुए मैंने पूरा आउटलाइन बनाया, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगा कि मैं एक एक चीज में घुसूंगा और मैं देखूंगा कि क्या ये उस नैरेटिव में आता है कि नहीं। ठीक है, मैं इसमें देखूंगा, उसके बाद फिर मैं इससे, इसने मुझे दिया हुआ है रिकमेंडेड रीडिंग। ठीक है, तो मैं इसको भी जाके एक दफा रिव्यू करूंगा अपने तौर पे। अच्छा, सबको एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिसर्च का भी एक तरीका होता है वो कि आप पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हो, फिर उसके इंक्लूजन्स पढ़ते हो, फिर आप सोचते हो कि पूरा पढ़ना है कि नहीं। तो एक दफा वो सारे देख लेना। तो यू स्पेंड सम टाइम कि इन चीजों में आप देखोगे, आपका काफी काम उसने, ये पहले सर्च करना भी एक आर्ट होता था कि आपने लिटरेचर ढूंढना कैसे, अब प्रिटी मच ये इजी हो गया। ठीक है, फिर उसने आपको बताया कि नैरेटिव किस तरह से लेके चलना है, इसको आपने ठीक करना होगा अपने हिसाब से। ठीक है, अगेन ब्लाइंडली नहीं आपने उसमें वो चलना। फिर चैप्टर बाय चैप्टर वो आपको बता रहे हैं कि हम क्या समरी होंगे, तो आप फिर क्या करना शुरू होगे, अब आप चैप्टर के फिर वो बनाना शुरू कर दोगे। लेट्स से चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1.md में लेट्स से मैं चैप्टर 1 की सारी चीजें कॉपी करके इधर डाल दूंगा और उसके बाद उसको लिखना शुरू कर दूंगा अपने साथ से। फिर मैं उसको बोलूंगा यार ये मैंने लिख दिए, वही प्रॉम्प्ट आपने यूज करना है कि भाई ये मैंने कर दिए, अब क्रिटिकली रिव्यू दिस, डू योर ओन रिसर्च और ऐड रेफरेंसेस और फाइनलाइज। वो सारी चीजें आप उस तरह से फॉलो करके उसमें डाल दो। यही चीज आप रिसर्च में भी यूज करोगे। मैं रिसर्च में अपने वाले में क्या करता हूँ कि, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट इनसाइट दे ही देता हूँ। तो बेसिकली मैं करता ही हूँ कि मैंने एक मिसलेनियस का फोल्डर बनाया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मिसलेनियस वाले फोल्डर में ना, जैसे अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये मिसलेनियस के फोल्डर में आपको लेफ्ट पे नजर आ रहे हैं काफी सारे पीडीएफ हैं, ये मैं डाल देता हूँ और इसका रेफरेंस देके मैं उसको कहता हूँ कि यार ये जो लिटरेचर का पूरा जो मेरा आउटलाइन है ना, ये काइंडली भर दो। ठीक है, मैं उससे पहले ये भरवाता हूँ, ये सारा मैं उससे भरवाता हूँ। ठीक है, ये सारा मैं उससे भरवाता हूँ। मैंने अभी इस वक्त कितने, तकरीबन 1310 मैंने इससे जो है वो रिव्यू करवा लिया, आप देख लें। दैट्स द हाई नंबर जो मैं उससे रिव्यू करवा लूँ। ठीक है, तो लिटरेचर जो है मैं उसे एक एक करके रिव्यू करवा रहा हूँ। सही है, उसको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, अब इसी चैट के थ्रू मैं उसे रिव्यू करवा रहा हूँ। अब जब वो इसको मैं रिव्यू करता हूँ, मैं सबसे पहले उसे कैटलॉग करवाता हूँ। वो इस कैटलॉग को भरता है जिसमें ऑथर्स, पब्लिशर, कंटेंट समरी, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंट्रीब्यूशन, रेलेवेंस असेसमेंट, ये पूरा वो भरता है, ये मैंने खुद बनाया। जब वो इसको भर लेता है तो उसके बाद फिर मैं इससे सवाल करना शुरू करता हूँ कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, अब बताओ क्या चीज इसमें रेलेवेंट है। तो इस तरह से उसको दोनों चीजें वो पता चल जाती हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किस लिटरेचर में से कहना चाह रहा हूँ। वरना अगर मैं उसको खुला हाथ दे दूंगा, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। आपने लिटरेचर की जो स्कोप डिफाइन करना और क्या कहते हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना, ये आपको आनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आपको खुद कुछ लिखना आता हो। ठीक है, उसके बाद आप वो करवा सकेंगे आगे काम। अगर आपको खुद लॉ का अंदाजा नहीं है और आपने सही से लॉ को समझा नहीं है, तो आप एआई से लॉ नहीं करवा सकते। हाँ, एआई आपको लीगल ड्राफ्ट्स बहुत अच्छे बना के दे देगा, वो ड्राफ्ट्स हैं, वो फाइनल नहीं होने चाहिए। फाइनल आपका दिमाग यूज होना चाहिए कि उसको फाइनल कॉन्टेक्स्ट में लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके, अपने इमोशंस, अपने पैशन, उसको वो डाल के तब उसमें होता है। आप एआई से पोइट्री नहीं लिख पा सकते। पोइट्री इज ऑफन वेरी पर्सनल और क्या कहते हैं, वेरी, क्या नाम है, अब अगर एआई से डायलॉग लिखवाओ, और मेरा नहीं ख्याल एआई डायलॉग, मैंने एआई यूज करके बुक लिखी है एक ऑलरेडी अमेज़न पर है, लेकिन उसमें डायलॉग मेरे हाथ में लिखा है। एआई इतने रोबोटिक डायलॉग्स कर रहा था वो। अब
टोल्किन की एक लाइन है उसमें, जब लाइक व्हेन द राइडर्स ऑफ रोहान जब वो अटैक करने जा रहे होते हैं, वो तो उसका बहुत प्यारा लाइन है कि मतलब सब उनको नजर आ रहा है कि लोग मरने वाले हैं, हम सब ठीक है, हम नहीं बचेंगे। और क्या कहते हैं ये जो आप कह रहे हो ना, दे मेक देमसेल्फ फील बेटर, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट के पहले कर्व पर है कि जब उनको लगता है उनको बहुत आता है। जब आप डीप घुसते हो ना तो आपको पता चलता है आपको कुछ नहीं आता, फिर आप उस पॉइंट पे आते हैं कि आपको पता होता है कि आप क्या पता है और क्या नहीं पता। ठीक है, तो हमारे लोग ना पहले उसमें फंसे हुए हैं, तो ये अवेयरनेस एक्चुअली जरूरी होती है। हाँ, मैं आपको लोगों को टॉलकिन का बता रहा था। टॉलकिन की लाइन में उसने पूरा वो बताया कि भाई नाउ फॉर रात, नाउ फॉर ruin to the world's ending, and then all of them shouted deaths and all that। जिस तरह टोल्किन ने डिफाइन किया है उसने दिल से लिखा है, क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 2 में जंग लड़ी है। एक बंदा जिसने कभी जंग देखी ना हो वो जंग के बारे में लिख रहा है, और एक बंदा जो जंग सरवाइव करके आ रहा हो और वो जंग के ऊपर लिखे, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, और ऑल्सो रियलाइज कि एआई जो है वो आप ही लोगों के डेटा पे ट्रेंड है, तो आप लोग अगर गार्बेज लिखना शुरू हो गए तो आगे आने वाला एआई भी गार्बेज होगा। ठीक है, तो पॉइंट मेरा यही है उसमें कि भाई आपने किसी भी पोर्शन में अगर आपको एक बंदा आपको रिपोर्ट ला के देता है, आप क्या कर रहे हो, तो एआई से रीचेक कर रहे हो। आप वो एक लेके उसका एज एन ओपिनियन रखो, लेकिन खुद भी उसको पढ़ना सीखो, खुद अपना दिमाग यूज करके, लॉज ऑफ लॉजिक, ठीक है, वो यूज करके उस सबको, और फिर आप लोग उसमें क्या कहते हैं वो करो। तो बेसिकली यही है कि ऑल थिंग्स should be finalized by you. AI will help you to write it, but it should be finalized by you. Finalize का मतलब कि आपने पढ़ा हो और आप उससे every step उसको verify कर रहे हो, cross verify कर रहे हो। ठीक है, मीम शेयरिंग पे नहीं लग जाओगे यार। वो भाई फेसबुक, मैं एक दफा पूछा यार, पता नहीं किसी का यार, वो पता नहीं कोई ट्रम्प से रिलेटेड किसी ने पूछा कि उसने पता नहीं इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने किधर हो वो, तो वो कहते हैं वो मैंने फेसबुक पे देखा था। हाँ, बाद में देखा मैंने, एक कहते हैं हमारे गांव के, मैंने कहा भाई आप तो ये मीम पेज है। हाँ, जॉर्ज बुश ने इस्लाम कबूल कर लिए, एक वीडियो भी आई थी, जॉर्ज बुश ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने किधर देखा वो, कहते हैं यार वो फेसबुक में आता है जॉर्ज बुश ने इस्लाम कबूल। मैंने कहा भाई ये तो मीम है, आप कॉन्टेक्स्ट तो देखो, आप उसको क्रॉस वेरीफाई तो करो। आप लोग वो भी नहीं बॉदर करते हो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो क्या कहते हैं, इट्स अ मैटर आपकी पर्सनल एफर्ट पे हो जाते हैं। हमें पहली जो खबर मिलती है हम उसको मान लेते हैं, हाँ ठीक है। ठीक है, मुझे अभी भी याद है एक जो जॉनी डेप है, बड़ा मशहूर एक्टर है, उसका केस आया तो मेरी बहन है वो, उसने जो है ना अपनी बीवी को पीटा, ये किया वो किया। मैंने कहा यार बुरी बात है, खवातीन को तो इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन अगेन ये तो हमें वन साइड ऑफ स्टोरी पता है, तो इसको साइड पर रखेंगे। नहीं आपको बुरा नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, खवातीन को नहीं मारना चाहिए, बट ये चूंकि मीडिया से न्यूज आ रहा है तो ये बस उधर रख दो, साइड पे रख दो बस। और ओवर द टाइम पता चला दोनों साइड की, तो पता चला कि दोनों का ही कसूर था उसमें, ज्यादा लड़की की तरफ से था, बट जो भी हुआ ठीक है। काफी टाइम से अभी आजकल एप्स्टीन वाला हुआ, मैं बता रहा हूँ, दिस इज ओनली अ वे टू गेट योर अटेंशन ऑफ फ्रॉम बिगर प्रॉब्लम्स। जब भी कोई इस तरह का बड़ा इवेंट हो ना, ये देखा करो कि ये क्या छुपा रहे हैं। तो अब आपको ये चीज पता है, ये एआई आपको नहीं बताएगी, ये कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा ही आपको बताएगा कि जब भी इस तरह का इवेंट हो, एप्स्टीन फाइल्स। अब इस चीज पे नजर रखो कि ये छुपाना क्या चाहते हैं। आपकी प्राइसेस पे नजर रखना, गोल्ड की, ऑयल की, इधर उधर इनकी प्राइसेस पे नजर रखो। आप ये देखो कि कौन से लॉज पास होने वाले हैं, एंड यू विल फाइंड कि इन्होंने जो जो लॉज करने थे, जो जो दूसरे इन्होंने स्कैंडल्स छुपाने थे, वो इस दौरान हो चुके हैं। तो आई थिंक लास्ट 10 मिनट्स अभी क्वेश्चंस के लिए करते हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस चैट पे करते जाओ, आई ट्राई टू आंसर देम। एनी क्वेश्चंस? अच्छा हाँ, आई सॉ फाइल नेम ब्लॉकचेन। यस, मेरा जो थीसिस है वो सिक्योर ऑटोनोमस विंड फार्म्स यूजिंग ब्लॉकचेन एंड एआई है। तो मैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एआई ब्लॉकचेन के साथ किया है। और मैंने अभी रिसेंटली एक ओपन सोर्स कोड भी अपना किया व्हिच यूजेस ब्लॉकचेन इन इट्स कोर एज वेल, और वेरिटास एआईडीबी के नाम से है। तो आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानीज जो ओपन सोर्स में इस तरह से इस लेवल पे contribute कर रहे हैं, and I'm honored to have good mentors who have guided me. अच्छा, how can someone with, but again final policy कभी भी AI वाला नहीं वो करना। आजकल इंडस्ट्री में स्पेशली डेलॉयट वगैरह में ये मसला हुआ है कि लोगों ने AI से जो है ना वो vulnerability analysis बना के दे दी थी, और उसमें इतनी मिस्टेक्स थी, तो आप ये चीज़ें उस पर वो कर रहे हो। ठीक है,
फिर दूसरा क्या कहते हैं, अगर आप पेन टेस्टिंग और उस तरफ जा रहे हो तो आपको पता है कि टर्मिनल वगैरह पे क्लॉड कोड वगैरह का हाथ पक्का है। अगर उसको आप गाइड कर लो तो दैट इज़ वन गुड वे टू गो। लेकिन आई थिंक क्लॉड कोड आपको एथिकल हैकिंग की तरफ नहीं लेके जाएगा, तो उसके लिए फिर आप ओपन कोड और बैक एंड पे कोई अनसेंसर्ड मॉडल यूज़ करो जो एज एन एजेंट काम करे, तो वो शायद आपका काम कर दे। लेकिन अब इन्होंने एआई पे बहुत गार्ड रेलिंग कर दी है, तो दिस इज़ हाउ यू वुड गो अबाउट इट। और अगेन डिपेंड्स किसी की साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। अगर आप वो कर रहे हो, क्या नाम है, सिंपल विंडसर्फ को यूज़ कर लो। अब तो मैं विंडसर्फ भी यूज़ कर लेता हूँ फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स। ठीक है, फोरेंसिक्स में क्या है, आप बेसिकली फाइल खोल खोल के पढ़ रहे होते हो। पहले तो हम लोगों ने बैठ के वो एक एक उसका जीरोज और वन बैठ के पढ़ रहे होते थे फोरेंसिक्स में किसी ज़माने में। अब तो वो भी ज़रूरत नहीं है, आप वो पूरी बाइनरी फाइल उसको दे दो, वो उसको रीड कर लेता है। ठीक है, उसको पास करवा लो और रीड करवा लो, वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो दैट इज़ वन गुड वे टू गो अराउंड इट। अच्छा, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन सर्वर, बैश बैश स्क्रिप्ट यूज़ करो बेटा, ये और कोई नहीं। बैश बैश आती हो ना, मैंने बैश पे पूरे पूरे वायरसेस बनाए हैं, बैश स्क्रिप्ट आती हो आपको। ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट एआई कर सकते हो जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले एक टूल है ये साइस्पेस के नाम से, उसमें आपको लिटरेचर रिव्यू और रिपोर्ट बहुत अच्छी मिल जाती है। साइस्पेस है, एक आपको मिलेगा एलिसिट के नाम से, ये आपको बहुत अच्छा लिटरेचर रिव्यू कर देता है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम है ये बताता है। मेथोडोलॉजी आपने खुद लिखनी है। देखो, इंट्रोडक्शन और वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, चलो मैं आपको अपना, अभी मैं एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहा हूँ, मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या याद करोगे तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये मेरी रेज्यूमे का, मैं लेटेक्स पे भी काम करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम स्क्रैच काम किया लेटेक्स पे मैंने। अब जैसे देखो, मैं ये एक ब्लॉकचेन सूटेबिलिटी इंडेक्स फार्मूला मैं एक बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोप्राइटरी टाइप फार्मूला ही है। अब आप ये देखो कि मैंने जो ये बनाया हुआ है, इसमें यहाँ से लेके लिटरेचर रिव्यू किधर गया मेरा, मैंने हटा दिया। आई थिंक ये मैंने अभी लिटरेचर रिव्यू, ये है लिटरेचर रिव्यू बेसिकली जिस पर मैं अभी काम करूंगा। ठीक है, मेथोडोलॉजी मैंने खुद ही मतलब बनाई है। ठीक है, ये इसलिए आपको बहुत वो एग्जांपल 1 और 2 और उस तरह से कि वो मैंने अपने पॉइंट वाइज करके बनाई है। ठीक है, बाकी सारा अभी मैंने एआई को पकड़ाया हुआ है और वो कर रहा है, लेकिन अभी मैं इसको भी बैठ के सीधा करूंगा सारे को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़े चीते चीते लोग हैं। ये रहीम अली वाज माय मेंटोर, ही वाज वन ऑफ द राइटर्स ऑफ लिनक्स। इन्होंने लिनक्स का कर्नल लिखा था, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। तो वेरेवर आई गो, मेरे बुक भी इन्होंने मेरे साथ ही लिखी थी, तो आई ऑलवेज पे होमेज टू हिम जब भी मैं कोई काम करता हूँ। तो ही वाज अ गुड मेंटोर एंड ही बिलीव्ड इन मी इन अ टाइम जब मोस्ट ऑफ द पीपल अबैंडन मी। तो या लॉन्ग स्टोरी, बट ये कि उसमें हो गया। तो आप ये देख रहे हैं अभी उसमें के जो मेथोडोलॉजी पोर्शन है मैंने हमेशा खुद लिखा था थीसिस में। आप क्या कहते हैं, मेथोडोलॉजी पोर्शन प्लीज आउटसोर्स मत करना। कंक्लूजन ये और वो सब उससे करवा लेना, अपने टेक्स्ट को लेटेक्स फॉर्मेट में बनवा लेना, लेकिन उसमें ना आपका सोल होना चाहिए। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं खुद लिखता हूँ ना, तो मेरे जो जानने वाले हैं वो उनको पता चल जाता है दानियाल ने लिखा है। आपकी राइटिंग की ये खास बात होनी चाहिए कि कोई भी अगर उस चीज़ को पढ़े ना, तो वो पहचान ले कि यार ये चीज़ जो है, लेट से शयान ने लिखे है, जीरत ने लिखे है, अल्ताफ ने लिखे है, तो ये चीज़ उसमें वो एक होना चाहिए। आपका एक अपना स्टाइल होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लॉर्ड ऑफ द रिंग रेफरेंसेस और हैरी पॉटर रेफरेंसेस, हॉबिट रेफरेंसेस देता हूँ। मेरी थोड़ा सा मैं वो थोड़ा सा गीकी किस्म का आदमी हूँ, मूवी रेफरेंसेस बहुत देता हूँ। तो दिस इज माय स्टाइल ऑन हाउ आई गो अबाउट इट। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें हो गया। कैन वी अर्न विद एआई टूल लाइक सम सोशल मीडिया इन, नहीं यार, ये पैसों वाला जो है ना, ये पैसा डबल वाला, ये अच्छा काम नहीं है। सबसे पहले वो काम ढूंढो कि जो आप एक्चुअल वो वैल्यू दे रहे होते हो। ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ जाओ, प्रोडक्ट बनाओ, उसको बेचने की कोशिश करो। ये कमीशन वाले काम है, उसमें ये इतना ये मजे का वो नहीं होता। ठीक है, कंटेंट बना रहे हो तो फिर कंटेंट बनाओ और उसमें फिर आप सेल्स कमीशन लो, तो आपके प्राइम चीज़ होती है कि आप कंटेंट बना रहे हो। ठीक है, अच्छा, मेरी अभी रिसर्च जो है वो दोनों है। कुछ चीज़ों में को मैं एक्सपर्ट रिव्यू के थ्रू कर रहा हूँ और कुछ तो हार्ड कोर इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो क्वालिटेटिव है इसमें। ठीक है, अब अर्निंग वाला जहां तक है उसमें वो है, आपने अपना बिजनेस मॉडल अच्छा बनाना है। एआई उसको सिर्फ फास्ट कर सकती है कि जहां आप पहले 10-10 बंदे रखते थे तो अब आपको एक ही जरूरत पड़ती है। मेरा पार्ट टाइम मैं कंसल्टेंसीज भी करता हूँ, इसी पे करता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं यार मैं मार्केटिंग का ये मेरा फनल है,
लेकिन इस पे 4 बंदे बैठ के काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ एक ही करे। यहाँ मेरी एक्सपर्टीज आ जाती है कि मैं फिर उनको वो पाइपलाइंस बना के, सॉलिड पाइपलाइंस बना के देता हूँ कि फिर वो एक ही डैशबोर्ड पे 10 बंदों का काम अकेले कर रहा होता है, ठीक है, और एक बंदा सिर्फ मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। तो दैट इज हाउ यू गो अबाउट इट, ठीक है। कोई भी अच्छा, जब भी किसी चीज में जाओ तो लॉन्ग टर्म में जाओ, शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाए ये वो इन चक्करों में मत जाओ। प्रोडक्ट बनाओ, कोई लॉन्ग टर्म चीज बनाओ, वो आपको जो रिटर्न देगी वो बहुत ज्यादा है। मैं अभी जो बुक्स लिख रहा हूँ, मैं 2 साल भूखा रहा हूँ, अब जाके बुक्स लिखी हैं, अब इस महीने रॉयल्टीज आएंगी पहली बार अगले महीने से, सही है। तो दिस इज हाउ यू वुड गो अबाउट इट। अच्छा, कैन वी यूज एआई टूल टू मेक सर्वे रिजल्ट्स, थीसिस रिसर्च, नोटबुक एलएम? मैंने ऑलरेडी इसका डेमो भी दिखाया है इन केस यू मिस्ड इट, और मैंने आपको अपना भी सर्वे दिखाया है और उसमें हमने 1300 से ज़्यादा पेपर्स को रिव्यू कर लिए एआई, लाइक इन अ वेरी सुपरवाइज्ड एआई पावर्ड वे। तो दैट इज हाउ यू वुड डू इट। डैशबोर्ड से अर्न करते हैं, सॉरी मुझे ये सवाल एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि एफबी पर जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड से अर्न करते हैं। यार ये अब देखो डिजिटल मार्केटिंग और उसकी तरफ हो जा रहे हैं, उसमें एआई स्पेसिफिक वो नहीं है, दिस इज टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप वो फेसबुक मेटा बिजनेस टू सूट और उसके बारे में बातें कर रहे हो, जो मुझे समझ आई है कि डैशबोर्ड्स और उसमें हम लोग डेटा साइंस में डैशबोर्ड बनाते हैं, यस उसके बहुत पैसे लेते हैं हम, और उसमें आपको पावर बीआई और पाइथन पे आपका हाथ पक्का होना चाहिए, तो आप वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स वगैरह बना सकते हो अपने डेटा एनालिटिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नहीं यार, आई थिंक ह्यूमंस विल ऑलवेज, टर्मिनेटर मूवी देख लो शयान, और आपको समझ आ जाएगी कि कोई ना कोई जॉन कॉनर टाइप कैरेक्टर आ जाएगा और वो मशीन के कोड को ब्रेक कर देगा। तो साइबर सिक्योरिटी जो है उनको सबसे पहले खुद लिनक्स पे हाथ पक्का होना चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अपने आप को कहते हो और आप लिनक्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो मतलब मैं तमाम तर गालियां आपको देता हूँ, और मैं उन सारे प्रोफेशनल्स को गालियां देता हूँ जो क्या कहते हैं अपने आप को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कहते हैं और उनको लिनक्स का एक बैश स्क्रिप्ट ही चलाना, ठीक है। जितने हैकर कम्युनिटी के लोग मैं जानता हूँ वो सारे लिनक्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिनक्स सीखो, ठीक है। दूसरा ये कि कम से कम कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट एंड टू एंड तो बनाओ, ताकि आपको पता तो चले कि एक ऐप में होता है क्या, किधर से अटैक करोगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पढ़िए, कभी की है आपने, क्या कहते हैं वो जी DDoS, और वो कभी किया है? मैंने किया हुआ है, और मुझे पता है कि अगर वो मैंने किसी को घुसना है तो मैं किस रास्ते घुसूंगा। आप रिकॉनेसेंस टूल्स ढूंढे ना, archive.org कभी गए हो? अच्छा, डार्क नेट पे लोग ज्ञान देते हैं, कभी एक्चुअल में गए हो? अगर किसी मनुष्य ने तो मैं ये कहा कि मुझे गूगल पे डार्क नेट का जो है ना लिंक मिल गया, वो झूठ बोल रहा है, और ऐसे आपको लोग फ्रॉड मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके जीरक, फिर अगर आपने किया है तो मुझे बताओ कि आपने कनेक्टिविटी किस तरह से की, ठीक है। आपने क्या कहते हैं उसका अनियन एड्रेस कैसे ढूंढा? ये चलो अनियन एड्रेस काम कैसे करता है? तो ये जो है ना बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे एक बंदे ने लिंक भेजा गूगल का, उस फ्रेंड से पूछना अनियन एड्रेस बताओ, और अगर आपने अपने लैपटॉप से किया तो फिर उस लैपटॉप को फेंक दो, क्योंकि यू डोंट नो कि किन एक्टर्स के साथ आप वो कर रहे हो। तो ये वाले ये ना ये सारे ये जो आप इस तरह, मेरे दोस्त ने इस तरह से भेजा था, उसको बड़ा आता है भाई, कुछ नहीं आता, झूठ बोलते हैं। और जब आप उसको क्रिटिकली रिव्यू करते हो ना, तो तब आपको पता चलता है कि कितने लोग हमारे यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए बैठे। मैं एक बंदे को मैंने बोला यार टॉर ब्राउजर यूज करो, उससे आप इस अनियन एड्रेस पे जाओ, हिडन विकी की तरफ जाओगे, हिडन विकी से जो है आप फिर उसके आगे नेक्स्ट फोरम्स की तरफ जाओगे, और वो कहता है यार कौन सा टॉर ब्राउजर? मैंने कहा यार एक ही होता है, और कौन सा टॉर ब्राउजर? तो यहाँ ये आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स है ना, जो आपको वो कर रहे हैं, जब आप उनको ऐसे क्वेश्चन करना शुरू करोगे ना, तो फिर वो सारी जो फसाड है ना इनका, एक फेक मास्क जो है वो आपका खुल के सामने उसका वो आ जाता है। यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल मैन। अगर आप रेने डेकार्ट को पढ़ो, कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म पढ़ो, तो यू थ्रो अवे ऑल द एप्पल्स एंड देन पिक अप द वंस दैट एक्चुअली मैटर टू यू, ठीक है। अपने सारे थॉट्स को पहले फेंको और फिर एक एक को चेक करके फिर वापस बास्केट में डालो। दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म। दिस इज व्हाट यू नीड टू डेवलप, especially in the world of AI. This is even more important right now. गुड यार, अच्छी बात है शयान, अगर आप ये चीजें कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, दिस इज गुड। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग हैंड्स ऑन पहले सीखें, फिर एआई से कराएं। देन यू नीड टू फिगर आउट कि बैश स्क्रिप्ट से कैसे चीजें ऑटोमेट करोगे, ठीक है। एंसिबल स्क्रिप्ट्स यूज करके कैसे ऑटोमेट करोगे। नेक्स्ट आप फिर यूज करो कि आप उसको बताओ कि यार इस चीज को करो, कौन से पैकेट्स आ रहे हैं, ये पैकेट्स जरा पढ़ो, वायर शार्क से आपने पैकेट्स खुद इंस्पेक्ट करने की बजाय उससे करवा लो। दिस इज हाउ आई वुड गो अबाउट इट, ठीक है।
अगेन प्रोजेक्ट्स जब तक स्पेसिफिक नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, और अगर बहुत स्पेसिफिक होंगे और मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा तो मैं कंसल्टेंसी के जो है ना $50 एन आवर लेता हूँ। तो क्या कहते हैं, बट मैंने आपको आई थिंक किसी भी सेशन में इतना खुल के नहीं कुछ चीजें बताता जितना मैंने आपको चीजें इसमें बता दी, स्पेशली ऑन दैट एंड जो साइबर सिक्योरिटी के सवाल मुझसे पूछे। तो आई थिंक मैंने राइटिंग को कवर कर लिया, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड को भी कवर कर लिया, मैंने थोड़ा सा लॉ के बारे में भी बात कर ली है, मैंने एआई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये साइबर सिक्योरिटी की भी बात कर ली। तो आई थिंक इट प्रीटी मच हमने काफी सारे टॉपिक्स टच कर लिए। तो साहिबा, Yes, ओवर thank टू you so much. First of all, I would like to pay you a gratitude note from my whole team. In our squad, we definitely try to provide quality knowledge, hands-on skills-based knowledge, and authentic knowledge. So authenticity is always be my first priority for my audience. So from this perspective, definitely you did a very great job. And today, the knowledge you shared with our all respected audience is was invaluable, and this is not only invaluable but also will help them to improve the things in future. And definitely AI is not just a tool, it's a trend, it's a movement, and it's the necessity of the upcoming days as well. So from this perspective, you combine the most significant quality of human being, that is creative thinking. तो उस perspective से definitely the whole session was really amazing, and the way you handle each and every query from our participants is really incredible and marvelous. Thank you so much for giving your precious time and valuable time to our audience. And inshallah, in upcoming days, we will have you on board in another session, because the knowledge, the brevity, the communication, and the suggestions you deliver to our audience is definitely remarkable ones. And we wish you best of luck for your future endeavors. And thank you so much, all the participants who join us today and take the session with the full attention. And also, you people shared your queries, and I hope so all the queries that you shared to our respected honorable guest speaker is solved by our guest speaker. Thank you so much, and wish you all best of luck. And as you all know that this is our 3 day series in recognition of Indus AI Week. So 2 days are left, and inshallah, we will have a very amazing speaker in upcoming 2 days. So stay tuned and have a healthy learning journey with Sahiba Writing Squad. Thank you so much, and to our respected guest speaker, Sir Danial Khan, once again for sharing the hands-on knowledge on artificial intelligence and the human creativity. Thank you so much, Miss, for sharing your This insights all and right regarding. information. And special thanks to Mr. Muhammad Danial Khan for gracing us with his presence and sharing his valuable expertise in artificial intelligence. Your session has not only provided deep insights into secure and trustworthy AI but also has inspired us to think critically about the ethical and practical implications of emerging technologies. We are truly honored by your time, guidance, and the wisdom you have shared, which will greatly influence our learning and future endeavors. Thank you so much, Ms. Saiba, for organizing this session, and special thanks to Mr. Danial for making this session more valuable and informative. Thank you so much. Please, everyone, mark your attendance. Now it's time to mark attendance. हाँ यार, नहीं आई नो कि क्या था तैयब का इशू है। जी सिद्रा, आपकी कोई क्यूरी है तो आप शेयर करें।
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फरा रिकॉर्डिंग की है? जी मिस की है रिकॉर्डिंग। ऑलराइट।